गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो कल हमने वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड प्रेशर। और मैंने कल आपको बताया था कि फोर्स एक टाइप का पुल एंड पुश होती है किसी ऑब्जेक्ट पे। आई टोल्ड यू व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पुल एंड दैट ऑल आर एक्टिविटीज आर सॉर्ट ऑफ push and pull only, and force is that act of push and pull. I gave you this table 9.1 to do. I hope you've done it. To understand what push and pull actually is. फिर मैंने आपको बताया था that force always works when there is an interaction between two objects. Okay, जब तक दो चीज़ें एक दूसरे से interact नहीं करती हैं तब तक force activate नहीं होती. For example, आपके पास एक बॉल पड़ी रह सकती है, पर जब तक आप बॉल को किक नहीं करेंगे there is no interaction between you and the ball, and therefore there will not be any force. So कल that's what and then we did magnitude of force. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि force can be exerted in the same direction like it is happening in figure A. Force can be exerted in different directions like it is happening in figure B. जब force एक direction में होती है, similar direction में होती है, तो वो forces add हो जाती हैं, and therefore the size of force is more when the direction of the force is same, and when the force is in opposite direction. For example, this boy is pushing it this side, this boy is pushing it this side. In that case, when the force is in different direction, then they get subtracted from each other. Okay, so the magnitude of force or the size of force is more when the force is in same direction, and the size of force is less when the force is in different direction. ये हमने कल के वीडियो में किया था. I hope you've gone through it. Any of you who's not watching the videos, whether they are given by me or they are given by other subject teachers, this is not a loss of your teachers, this is your loss. I think you get enough time during day to watch these videos. A lot of effort is being done by your teachers to make these videos, and you are supposed to watch them. क्योंकि इस समय जो हालात चल रहे हैं, this is our best way to achieve some sort of academic continuity in regard with your studies. तो teachers can only do this much from their side, that they can give you lessons, they can record lessons, they can give you notes, but end of the day how you process those notes and videos is your effort alone. So I hope कि आप सब बच्चे जो भी आपकी टीचर्स वीडियोस डालती हैं, जनरली 15 से 16 मिनट से लंबे वीडियोस नहीं होते, एक क्लास में भी हम एक दिन में उतना ही कवर करते हैं. तो आई होप यू आर टेकिंग आउट टाइम. It is a matter of taking out 5 to 6 hours every single day. If you take out 1 hour for each of your subjects every day, then you have enough time to go through all the subjects and to watch videos and do work of all these subjects. So I hope you are doing that much. And if you are not doing, then end of the day it is your loss. Okay. So let's move further today. Let's start with, today I will start with 9.4. नाउ हमने अभी तक पढ़ लिया कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होती है. फिर हमने ये पढ़ लिया कि साइज ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, और हमने पढ़ लिया कि फोर्स कैसे दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होता है तभी होता है. लेकिन अब जब फोर्स होती है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट होता है, तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है. ओके, सो इन दिस पोर्शन वी विल रीड अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स. Now force affects in two ways. Okay, पहला वे है force can change the state of motion of an object. Force can change the state of motion of an object. And second, force can change the shape. ये दो तरीके हैं जिसमें force किसी चीज को affect करती है, यानी कि उसके ऊपर असर डालती है. तो let us see A first, force and state of motion. Now let's understand first what is state of motion. सिंपल शब्दों में स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन होता है. ओके, एनी ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन इज बेसिकली इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ऑल राइट. तो अगर एक बॉल मूव कर रही है, आपने एक बॉल रोल की फ्लोर के ऊपर, सो इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन. ओके, बिकॉज इट इज मूविंग. फाइन. पर जब वो रुक जाती है, इवन देन इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन. द ओनली थिंग इज दैट इट्स मोशन इज जीरो.
Okay, so in simple terms, state of motion is the speed and direction of an object. किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये जो स्टेट ऑफ मोशन होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूविंग भी हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूविंग भी हो सकता है. व्हेन इट इज नॉट मूविंग, द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड जीरो. ओके, सो बेसिकली speed and direction of an object is state of motion. Now how does the force change state of motion? Force किस तरीके से state of motion को change करती है? Force brings about change in state of motion in certain ways. Number one, force can make moving objects stop. ओके, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको बॉल फेंकी और आपने फोर्स लगा के उस बॉल को रोक लिया. तो यहां पर क्या किया? फोर्स हैज मेड अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, आप देखते हैं बैट्समैन जो है वो शॉट मारता है और बॉल उड़ते हुए जाती है और वहीं पर फील्डर बाउंड्री पे खड़ा होता है और वो लपक के उस बॉल को रोक लेता है. सो अगेन व्हाट डिड द फोर्स डू? फोर्स स्टॉप्ड अ मूविंग मोशन. So moving object. So the first way in which force brings about a change of motion is that it can make moving object stop. ये एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है. Okay. Second impact is force can move stationary objects. अब वहां पर चलते हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स रोक सकती है. सेकेंड पॉइंट इज कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है फोर्स उसको मूव कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टेपलर इज हियर, आई अप्लाइड फोर्स, इट हैज मूव्ड फ्रॉम देयर. ओके, इफ आई रोल दिस पेन, I put a force and it will roll. Okay, so I have changed the motion from pen being stationary to it being in the motion state. Similar way, मैंने कल भी जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक कार अगर खराब हो जाए तो पीछे से जब लोग उसको धक्का देते हैं तो वो कार चलने लग जाती है. तो अगेन द कार वॉज स्टेशनरी एंड व्हेन द फोर्स वॉज अप्लाइड इट मूव्ड. थर्ड वे इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी चीज का डायरेक्शन बदल सकती है. जैसे दोबारा मैं आपको क्रिकेट मैच का ही एग्जाम्पल दूंगी. आपने देखा कि दूर से बॉलर भागता हुआ आता है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉल या पिच के ऊपर बॉल बैट्समैन को डालता है और बैट्समैन अपने फोर्स से शॉट लगा के उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है. सो व्हाट डिड द फोर्स डू? फोर्स चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस इज द थर्ड पॉइंट. अब कई बार फोर्स चेंज नहीं कर पाती है स्टेट ऑफ मोशन. ओके, दिस इज जस्ट अ नोट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दीवार को खड़े होकर कितनी देर तक फोर्स लगा ले, दैट दीवार इज नॉट गोइंग टू मूव. आप खड़े होकर, एक बुलडोजर खड़ा हुआ है, आप उसको खड़े होकर कितनी देर तक मोशन फोर्स लगा लें, दैट बुलडोजर इज नॉट गोइंग टू मूव. सो समटाइम्स कोई चीज मूव इसलिए नहीं करती बिकॉज द फोर्स इज नॉट बिग इनफ. हमारी जो फोर्स है वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती. सो लेट्स गो थ्रू इट वंस मोर. इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? दो तरीके के इफेक्ट्स होते हैं. एक तो फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ अ मोशन एंड सेकेंड इज फोर्स कैन चेंज द शेप. तो पहले हम फोर्स इन स्टेट ऑफ मोशन देखेंगे. स्टेट ऑफ मोशन इन सिंपल वर्ड्स इज जस्ट द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इंक्लूड्स एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट स्टेशनरी when it is in stationary state, because then the state of motion is zero, or when it is moving. Okay, the object can be called in state of motion when it is moving or when it is not moving. When it is not moving, the state of motion is zero. Now how does the force bring about a change in state of motion? It brings about change in state of motion in few ways. First way is it can make a moving object stop. Okay, I gave you the example कि कैसे फील्डर बॉल रोकता है. Second is it can make a stationary object move. For example, कार ब्रेक डाउन हो जाती है, रुक जाती है, तो कैसे उसको धक्का मार के लोग मूव कर लेते हैं फोर्स से. Third is it can change the direction of an object. Again, I gave you the example of cricket, that how batsman hits the ball and changes its direction. And sometimes when the force is not big enough, जब हमारी जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हम कुछ चीजों को नहीं हिला पाते. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत भारी पत्थर है या एक दीवार है. So sometimes they do not move because the
force is not big enough. So this is the impact of force on state of motion. Then comes impact of force on state of force on the shape of object. मैंने आपको पढ़ाया था ना, या दो थी, on state of motion and it can change the shape. तो state of motion हमने A पढ़ लिया, अब हम B पढ़ेंगे दोबारा से, फोर्स एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. अब फोर्स जो होती है कई बार किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर लेती है. जैसे कि एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जब आपने देखा होगा घर में मम्मी खाना बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, फिर उस आटे, पहले वो आटा क्या होता है, पहले वो आटा पाउडर होता है, उस पे फोर्स लगाई जाती है पानी डाल के, तो पहले वो आटा शेप चेंज करके क्या बन जाता है, गुंदा हुआ आटा बन जाता है. उसके बाद उस गुंदे हुए आटे के ऊपर दोबारा फोर्स लगाई जाती है, तो उसके क्या बन जाता है, छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं. और फिर उन बॉल्स के ऊपर दोबारा फोर्स लगाई जाती है, तो वो बॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, चपाती में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो आपने देखा कि हाउ एट एवरी स्टेज फोर्स लगाने से उस आटे की जो शक्ल थी, जो शेप थी, वो चेंज होती गई. ऑल राइट. सिमिलर वे आपने देखा होगा जब आप बाइसिकल या गाड़ी की सीट पे बैठते हैं, तो जब आप बैठते हैं तो वो सीट हल्की सी दबती है. फाइन, क्योंकि आपके बैठने से उसके ऊपर फोर्स लगी तो वो साइकिल की सीट का शेप थोड़ा सा चेंज हुआ. ओके. सिमिलर वे अगर आप एक लकड़ी की स्टिक लें, ओके, या आप एक किसी एल्यूमिनियम या किसी चीज की शीट ले, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो अगर वो पहले स्ट्रेट है तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी. फाइन. फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स सी दिस कार्ड. ओके, नाउ दिस इज स्ट्रेट. इफ आई अप्लाई फोर्स आई कैन बेंड इट. ओके, सो दैट मीन्स द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन object. Okay, force can change the shape of an object. So I hope you've understood this. These are the two things that we did today. Effects of force. So force affects in two ways. It affects the motion of an object and it affects the shape of an object. How it affects the state of motion? It can make a moving object stop. It can make a stopped object moving. It can change the direction of an object, and sometimes when the force is not big enough, it may not do anything. Okay. And second is force can change the shape of object. So I gave you the example of chapati. So ये है दो चीजें जिस तरह से force affect करती है, जो कि force का असर होता है. Okay. So with this we started from 9.4 today, and we have I've taught you all this. Okay, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, this is 9.5 भी हमने कर लिया है. आप लोग आज ये टेबल करेंगे. फाइन. तो जैसे अब ये है, सिचुएशन क्या है, अ लंप ऑफ डो ऑन प्लेट, आटा एक प्लेट के अंदर. हाउ टू अप्लाई फोर्स, बाय प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड. तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्या इसका मोशन चेंज होगा, मतलब कि क्या इसका किसी तरह से मोशन चेंज होगा, तो नहीं, मोशन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो हाँ हो भी सकता है, क्योंकि जब आप आटा गूंथते हैं तो परात थोड़ी सी हिलती है जिसमें आप आटा गूंथते हैं, तो यस मोशन भी चेंज होगा. क्या शेप चेंज होगी, यस शेप भी चेंज होगी. ओके. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस टेबल. फॉर एवरी एग्जाम्पल आपको देखना है कि क्या उस चीज के मोशन में चेंज आएगा और क्या उस चीज की शेप में चेंज आएगा. अकॉर्डिंगली आपको येस एंड नो यहां पर मार्क करना है. सो वी हैव डन टिल हियर एंड फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो कल मैं आपको 9.6 से स्टार्ट करूंगी. चिल्ड्रन प्लीज पे अटेंशन, प्लीज रीड द चैप्टर. और अगर किसी कारण से आपको चैप्टर पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड चैप्टर में बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल दिया होता है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, एटलीस्ट गो थ्रू द नोट्स दैट आई सेंड यू. ओके. तो प्लीज आप वो नोट्स जरूर पढ़ा करें. दैट वे ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू योर चैप्टर. आई एम कवरिंग एवरीथिंग इंपॉर्टेंट दैट इज देयर. अब जैसे मैंने आपको ये दो पेजेस जो पढ़ाए हैं, ये वाला आज, ये और ये, दिस कवर्स योर बुक पेजेस 105, 106, 107, 108 and 109 till here. So I've put 4 pages worth of material in only 2.5 pages.
All right. So please pay attention. At least read your notes if you're not reading the chapter. All right. So from tomorrow we will do contact forces versus non-contact forces. Okay. Thank you.